right now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. سورۃ النساء آیت نمبر 103 ہے. اس کا مفہومی ترجمہ ہے پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہے، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ راشد صاحب آپ کا. اب یوں ہے کہ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ڈاکٹر سمیہ سید who is the police surgeon of Karachi. She's MBBS doctor and has done DMG, and her FCPS third year training is ongoing in forensic medicine. She's on the special medical board of Sindh Medical Legal Reform Committee, is working in the technical working group for a lot of things which are MLR, I don't know what this stands for, HR, SGBV. Then she is also a member of the Sindh Forensic Lab Committee and the Parliamentary Committee on Anti-Rape, and is a master trainer with UNFPA. She is also a clinical manager of and a rape specialist. We need people like this in our country because even our psychologists are at a loss of how to deal with this. She is at the visiting faculty at Sindh Police Academy and Sindh Judiciary Committee and is a guest lecturer at Federal Judicial Academy. We welcome you, Dr. Sumaya Sayed. And our panelists for today are Dr. Zahid Bashir, who is present over here. He is the principal of Shalimar Medical and Dental College. And Professor Niaz Baloch, I think he is a bit late, but when he comes, he is the HOD of Forensic Medicine and Medical and Dental College. Ji? Somebody said something. Can you please switch off your mics? Okay, you're here. Good, welcome. Welcome, Dr. Saab. Dr. Niaz Baloch, I don't know kis naam se aapne isme entry ki hai, kyunki naam aapka nahi aa raha. Hello? iPhone 2, Dr. NAB. NAB. Okay, okay. All the abbreviations. Welcome, Professor Niaz Baloch Saab. Challenge, we give it over to Dr. Sumaya Sayed, and I hope we all enjoy the great talk. What she'll be discussing would be about how to go forward. Thank you so much, madam. Thank you very much, Dr. Salma. I hope I'm loud and clear to all of you. Yes, can you guys hear me? Can you guys hear me? Okay. Yes. So basically, madam, I'll be rocking a few boats today because I belong to that part of forensic medicine which is essentially all about the practical work. I am perhaps one of the blessed few who have worked not only in the practical aspect but also teaches forensic medicine, teaching being my first love. So medical legal is the second one. Medical legal system, the way forward, how do we go about it? How do we improve our system? What is exactly happening in our part of the world? And I will focus mainly on Sindh, but since I've had I've had the privilege of actually understanding the medical legal system in Punjab and a bit in KP. So I think I'll be in a better position to suggest how we can go forward nationally. So ji, Bismillahir Rahmanir Rahim. Thank you so much for inviting me here.
and hopefully we will get better participation in a while. ہمارے لوگ ٹائم پر تو آتے نہیں ہیں تو تھوڑا سا I think اس کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے. اوکے میرا جو سارا تعلق رہا میرا جو میڈیکل لیگل سیکشن سے تعلق رہا اس میں جب میں نے 1999 میں جوائن کیا ہے سو میرے پاس لائک I had no way to go forward. کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, اس سبجیکٹ میں کوئی آگے پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے, کچھ نہیں پتا تھا. 99 میں پہلی پوسٹنگ میری یہیں پر ہوئی تو میں نے اپنا راستہ خود بنایا ہے. راستہ چلنا ہے, کس حد تک جانا ہے. I have been blessed with absolutely fabulous teachers جنہوں نے نہ صرف مجھے اس میں گائیڈ کیا بلکہ they are even showing me the way right now. یہاں تک مجھے پہنچانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں کہاں سے آ رہی ہوں, میں 1993 میں میرا 3rd ایئر میڈیسن تھا. ڈاؤ میڈیکل کالج کی میں گریجویٹ ہوں 1996 کی. اس وقت ہمارے پاس دا دین پولیس سرجن صاحب آئے شفیع نظامانی, انہوں نے قصاص اندیت پہ ایک لیکچر دیا. تو 1993 میں نے وہ قصاص اندیت پہ لیکچر دینے کے بعد اور لیگل پروسیجرز پہ جو لیکچر ہوتا ہے اس پہ انہوں نے اس کے بعد میرے کامنٹس یہ تھے کہ یار اگر پاکستان میں کارنر ہوگا تو I will become a coroner. مطلب کارنر مجھے میجسٹیریل پاورز بھی چاہیے تھے along side medical legal facilities, along side medical legal job. So my friends still joke to this day کہ دیکھو وہ قبولیت کا لمحہ تھا because in 1999 after doing my commissions in Public Service Commission میری انڈکشن ہوئی ایز میڈیکل officer at Police Surgeon Office Karachi and I have never looked back. دیکھتی رہی ہوں of staying with him till 2009. انہوں نے said that I should teach as well to undergrads. مجھے اسپیشلی انہوں نے کلاسز دی جو اس زمانے میں ہمارے پاس آغا خان کے وزٹنگ آیا کرتے تھے 3rd ایئرس, ان کو بھی پڑھایا کرتی تھی. اینڈ دین undergrads جو پڑھایا. So 2 years I completed that. 2009 I went back to Police Surgeon Office Karachi and in 2010 I started my work on rape examination. This was done in in collaboration with War Against Rape because وہ زمانے میں کام کر رہے تھے. So I started working with them on this and at a very I should say an early stage of my career میں ریپ کے وکٹمس کے ساتھ نہ صرف کام کر رہی تھی بلکہ SOPs بھی ڈیولپ کرنے پہ ہم نے کام کیا. Fast forward to 2016. 2016 میں I realized that 2-finger test that we have been doing یا ہمیں پہلے دن سے سمجھایا جاتا تھا کہ نہیں جی آپ نے 2-finger test کرنا ہے was actually unethical. I stopped doing it in 2016-17. 2018 I was trained by UNFPA and I became a clinical management of rape specialist. 2019 I joined Sir Professor Farhat Mirza as an FCPS candidate. اور آج میں سندھ میڈیکل لیگل ریفارمز کمیٹی پہ بھی سرو کر رہی ہوں, میں سندھ فورینسک سائنس لیب پہ بھی سرو کر رہی ہوں. یہ جرنی بڑی لمبی ہے اور آئی ہیو ہیڈ دی پریولیج اور رادر آنر آف سرونگ آن دی پارلیمنٹری کمیٹی آن اینٹی ریپ ایکٹ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ 2021. ابھی بھی جو رینامینیشن ہوا ہے اس میں بھی میں نوٹیفائڈ ہوں. سو میرا ریپوٹیشن کہیں بھی جاؤں مجھے کہا جاتا ہے MLO ہے, MLO ہے. ہمارا ایک خاص ہمارے بارے میں امپریشن یہ ہوتا ہے کہ یار MLO ہوگا تو کرپٹ ہوگا, MLO ہوگا تو 2 نمبری کرتا ہوگا. ایک ریگولر ڈاکٹر جو ہے اس سے کہیں نیچے درجے پر ایک MLO کو سمجھا جاتا ہے. ہارڈ جاب ہے, آئی اگری. پیپل آسک می وائی ڈو آئی ڈو دس, کرتی کیوں ہوں آخر میں یہ. میرا آنسر صرف یہی ہوتا ہے کہ a few of us have to do this dirty work. جس کو ایک عام ڈاکٹر ڈرٹی ورک کہہ رہا ہے, جس کو ڈاکٹر کرنے کو تیار نہیں ہے, جس کو اپنے فورینسک کی فیکلٹی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, جو ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ ہم چونکہ میڈیکل لیگل آفیسر ہے تو صرف کرپٹ ہوں گے, نکمے ہوں گے, انکمپٹنٹ ہوں گے, ہمیں کوئی ایتھکس نہیں ہوں گے, ہمیں کچھ نہیں آتا ہوگا, کچھ اور کر لیتی. یہ ایک اور سوال ہوتا ہے میرے لیے, یار کچھ اور کر لیا ہوتا. میں نصیب اعوان صاحب کی فالوور ہوں, ان کی کتاب میرے لیے ہولی بک ہے. اینڈ سڈنی اسمتھ جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں کو میڈیکل جیورسٹ کہتا ہے.
Sri Lanka mein, when I went there for my training as a clinical management of rape specialist, so I had the opportunity of interacting with the medico legal officers there. वहाँ medico legal officer को judicial medical officer कहा जाता है. And it is time that we started giving respect to our medico legal officers. हम जब तक उनको ये कहते रहेंगे कि ये 2 नंबर लोग हैं, हम जब तक उनको ये अज्यूम करते रहेंगे कि नहीं ये मेडिको लीगल ऑफिसर हैं, तो ये हड्डी ही तोड़ते होंगे, ये जाली केस ही बनाते होंगे, ये ऑटोप्सी ही खराब करते होंगे, ये सैंपल्स ही जाया करते होंगे, तब तक मेडिको लीगल सिस्टम आगे नहीं चलेगा. You need to give me, my department, the respect that it needs. मेडिकल फ्रेटर्निटी मुझे इज्जत नहीं देती है. जब मेडिकल फ्रेटर्निटी मुझे इज्जत नहीं देती है तो मुझे माशरा भी इज्जत नहीं देता है. जब मुझे माशरा इज्जत नहीं देता तो हाउ कैन आई टॉक अबाउट मूविंग फॉरवर्ड्स. मैं लकी कैसे रही बीइंग अ वुमन. मैं लकी ऐसे रही कि मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट सिस्टम. मेरे मियाँ ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम ये डिपार्टमेंट छोड़ दो. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टीचर्स मिले लाइक उमर मेमन साहब, फरहत मिर्जा साहब. आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टडिंग with them, taking their guidance. And मुझे अब जो 2018 के बाद से मेरा जो डिपार्टमेंट है वो मुझे fully support कर रहा है. हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सेंट सेक्रेटरी साहब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और टू सच एन एक्सटेंट दैट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी मुझे फुल सपोर्ट दिया गया, दैट आई वाज गिवन अ फ्री हैंड एज टू व्हाट आई वाज एडवाइजिंग, व्हाट आई वाज ऑफरिंग, व्हाट आई कुड गिव. तो मेरा जो काम है, जो मेरा सारा sort of मैं कहूँ कि my contribution to the medico legal field has been in the capacity of a medico legal officer. Yes, मैं medico legal officer से senior पे गई हूँ, senior से मैं additional police surgeon हुई हूँ. Currently मेरे पास additional police surgeon का भी charge है JPMC के, and in addition to that I am assigned to hold additional charge of police surgeon Karachi. And I am indebted to my department, to Secretary Sahab, Secretary Health Sahab, and Madam Minister Sahiba of Sindh Government Health Department. अच्छा, इसमें let me move on. कुछ चीजें हैं which I think Zahid Bashir Sahab भी and Sir भी, you guys will understand. दो अलग-अलग चीजें हैं, दो अलग-अलग दुनियाएं हैं. There is academic forensic medicine and there is practical medico legal system. हम साथ साथ तो चल रहे हैं, we are doing exactly the same thing, मगर हमें acceptance नहीं दी जा रही. Forensic medicine एक अलग entity के तौर पे लिया जाता है. वहाँ के प्रोफेसर्स हमारे पास उस वक्त आते हैं जब वो हमारे बोर्ड में बैठे होते हैं, या वो हमारे पास उस वक्त आते हैं जब उनको हम कस्टोडियल डेथ बोर्ड के लिए बुलाते हैं. तो हमें ओपिनियन देने के लिए उनका चाहिए होता है. एंड एट टाइम्स, आई एम सॉरी टू से दिस, मगर देयर आर वेरी फ्यू प्रोफेसर्स ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन जिनका कोई साउंड मेडिको लीगल प्रैक्टिकल बैकग्राउंड है. most, not all, most are just academic. किताब पढ़ के एग्जाम पास करके वो प्रोफेसर बन गए. ऐसा एकेडमिक प्रोफेसर मेरे मेडिको लीगल प्रैक्टिकल सिस्टम में कोई फायदेमंद नहीं है, क्योंकि उसको प्रैक्टिकलिटीज पता ही नहीं है. A system, you need to integrate my system into already existing system of forensic medicine. नसीब अवान साहब भी यही कहते हैं कि जब तक forensic medicine department के साथ medico legal system attach नहीं होगा, जब तक MLOs को वो वाली इज्जत जो एक फैकल्टी के लेक्चरर को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर को नहीं दी जाएगी, तब तक मेडिको लीगल सिस्टम इम्प्रूव नहीं होगा. मेरा कंसर्न, आई एम ब्लेस्ड बिकॉज मेरे पास बेस्ट ऑफ बोथ. मैं कोशिश करके अंडर्स को, पोस्ट ग्रेड्स को, मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, न्यूली इंडक्टेड जजेस को, ट्रेनिंग रिफ्रेशर कोर्सेज जो जजेस के लिए होते हैं वो, तो मैं एक बेसिकली आई एम एट अ वेरी प्रिविलेज्ड प्लेस. और यहाँ तक पहुँचने में मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत खून पसीना बहाया है, so to say. Medical legal system is perhaps the only system in the entire MBBS and BDS that brings all the facilities, all the subspecialties together. दांत पे चोट लग जाए, मुझे BDS वालों की हेल्प चाहिए. सेक्सुअल असॉल्ट है, मुझे गायनी वालों की हेल्प चाहिए. मुझे रेडियोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए. मुझे ओडोंटोलॉजिस्ट चाहिए. मुझे मेंटल ट्रॉमा के लिए साइकाइट्रिस्ट चाहिए. मुझे आप ये बता दीजिए, take 10 seconds.
मुझे नाम गिनवाइए, एक भी हाथ पे पूरे नहीं होंगे. मुझे फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट बताइए, मुझे फोरेंसिक साइकाट्रिस्ट बताइए, मुझे फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट बताइए, मुझे फोरेंसिक रेडियोलॉजिस्ट बताइए, मुझे फोरेंसिक गायनेकोलॉजिस्ट बताइए, जो इन एडिशन टू ओडोंटोलॉजी, साइकाट्री, पैथोलॉजी, गायनेकोलॉजी जो फोरेंसिक्स को टाइम दे रहे हों. मुझे ये सिर्फ इनके नाम गिनवा दीजिए. पूरे पाकिस्तान में एक हाथ की उंगलियां भी ज्यादा हैं, एक हाथ की उंगलियां भी ज्यादा हैं. क्यों नहीं आते लोग, क्यों नहीं आ रहे लोग? मेरे लिए सब्जेक्ट के लोग मिलते हैं जिनका I expect them कि वो मुझे ओपिनियन देंगे. I will rather trust a radiologist जिसका फोरेंसिक बैकग्राउंड है, जिसको ये पता है कि ये फ्रैक्चर एंटीमॉर्टम है या पोस्टमॉर्टम है, ये फ्रैक्चर 2 दिन पुराना है या 10 दिन पुराना है, और वो मुझे फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस पर ओपिनियन भी दे सकता है. मुझे वो ओडोंटोलॉजिस्ट चाहिए, मुझे वो रेडियोलॉजिस्ट चाहिए जो मेरे साथ एज असेसमेंट प्रोटोकॉल में, जो दुआ ज़हरा वाला केस हुआ उसमें हमने एज असेसमेंट प्रोटोकॉल को, आई वाज लकी कि मेरे साथ प्रोफेसर शाहजहां कटपर थे जिनकी फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी में वो हैं, मतलब थोड़ा बहुत उनका इंटरेस्ट है. उसके साथ आई वाज लकी कि वहां पे प्रोफेसर सबा सुहेल मेरे साथ थी जिनको रेडियोलॉजी में, फोरेंसिक रेडियोलॉजी में थोड़ा सारा इंटरेस्ट है. बट मेरे पास एज इट इज स्पेसिफाइड या एज इट इज क्वालिफाइड, मतलब डिग्री होल्डर्स नहीं है. सो व्हाट टू डू, वेयर टू गो. मेरा जो मेरा फोरेंसिक मेडिसिन का प्रोफेसर है, जो उससे मुझे जब ओपिनियन मिलना होता है तो वो मुझसे पूछता है, ही इज आस्किंग मी कि ये जरा गैर जायफा मुतलाहिमा आप कब देते हैं. यार व्हाट काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड ओपिनियन एम आई आस्किंग फॉर? मुझे नहीं चाहिए ऐसा स्पेशलाइज्ड ओपिनियन जहां प्रोफेसर ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन मुझसे पूछ रहा है. व्हाई? बिकॉज ही लैक्स द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. वी नीड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज. मेरा प्रोफेसर जो मेरे साथ बैठ रहा है, जो पुलिस सर्जन कराची के साथ बैठ रहा है, the person who is giving opinion on the medico legal cases should be, if not as sound as me, should have a sound practical medico legal background. जो स्पेशल मेडिकल बोर्ड पे सर्व करते हैं, जो जुडिशियल बोर्ड पे सर्व करते हैं, जो एग्जीमेशन बोर्ड पे सर्व करते हैं, they need to have a sound medico legal background. By that I mean at least 5 years of medico legal work at a major medico legal center. किसी पेरिफेरी वाले सेंटर पर नहीं, मेजर मेडिको लीगल सेंटर पर. So this is the gap which exists between the academic forensic medicine and which exists between and the practical medico legal system. This is, I'm rocking the boat. I'm sorry, I'm ruffling feathers. Yes, I know a lot of people will like what I'm saying, but this is the basic, honest, very brutal truth. Very brutal truth. कि मेरे पास मुझे गाइडेंस देने के लिए कोई एक्सपर्ट्स मौजूद नहीं है. इसका वे आउट भी है मेरे पास. मैं अपने, आई एम ब्लेस्ड इन द सेंस कि मुझे रास्ते निकालने, हल निकालने अपने एग्जिस्टिंग उसमें से आता है. सो आई गिव यू द आइडियाज कि मैं क्या कहना क्या चाह रही हूँ, एंड मे बी दे बिकम एप्लीकेबल लेटर ऑन. मेडिको लीगल एंड एथिक्स, हमारे बारे में कहा जाता है कोई कनेक्शन नहीं है, कोई एथिक्स नहीं आती इनको. रियलिटी अदरवाइज है. मेरे ख्याल में बायोमेडिकल एथिक्स पूरे 5 सालों में फोरेंसिक मेडिसिन के अलावा, फोरेंसिक वाले लोगों के अलावा कोई नहीं पढ़ाता. बायोमेडिकल में चाहे कॉन्फिडेंशियलिटी हो, चाहे प्रिविलेज कम्युनिकेशन हो, चाहे प्रिवेसी हो, चाहे ऑडियो विजुअल प्रिवेसी हो, चाहे कॉन्सेंट टेकिंग हो, चाहे एसेंट हो, चाहे यूथनेशिया के इश्यूज हो, चाहे ट्रांसप्लांटेशन इश्यूज हो, चाहे अबॉर्शन हो, चाहे मिसकैरेज हो, चाहे जेंडर आइडेंटिटी हो, चाहे उसका एक्सप्रेशन क्या है आ रहा है, आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन क्या आ रहा है, मैस डिजास्टर्स में एथिक्स क्या क्या इन्वॉल्व है, क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ रेप में क्या क्या इन्वॉल्व है. इन सब से हमारा ताल्लुक बेतहाशा गहरा है. Dignity during life and dignity during death, that is what medico legal system is all about. मतलब कहा यह जाता है that कुछ है नहीं, इनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, बट ऐसा नहीं है. It's not like that. मेरे ख्याल में मेडिको लीगल सिस्टम जो है वो पढ़ा रहा है यार. फोरेंसिक मेडिसिन पढ़ाता है सारे सब्जेक्ट्स को, सारे स्टूडेंट्स को, बायोमेडिकल एथिक्स, सबको ये पढ़ाया जाता है. जब ये सबको पढ़ाया जाता है तो इसका मेरे एथिक्स के साथ बेतहाशा बड़ा. तो मेरे पास कोई एक्सपर्ट क्यों नहीं है?
कोई एथिकल एक्सपर्ट क्यों नहीं है मेरे पास? कोई फोरेंसिक बायोमेडिकल एथिक्स या फोरेंसिक या मेडिको लीगल एथिक्स क्यों नहीं एक्सपर्ट है मेरे पास? Why is it that I have to attend, why is it that I have to, you know, depend on myself कि मैं ethical issues को भी address कर रही हूँ? Why is it? मैं कह सकूं कि यार मुझे मेडिको लीगल एथिक्स का इशू होगा तो मैं ओपिनियन के लिए कहाँ जाऊंगी? Where am I going? हमने कोई करियर पाथ नहीं दिया, कोई करियर पाथ नहीं दिया, कोई रेफरल पाथवे नहीं दिया, हमने कुछ नहीं दिया. वी हैव नेवर एक्चुअली, मैं आपको रीजन भी बताऊंगी क्यों नहीं दिया, कि मेडिको लीगल को हमने बिल्कुल सेपरेट करके क्यों डाल दिया. मेरे हिसाब से ये बात प्रोफेसर हजरात को करनी चाहिए, मुझे नहीं करनी चाहिए एज पुलिस सर्जन कराची. ये प्रोफेसर हजरात का काम है कि वो इंटेग्रेट करें, ये फैकल्टी का काम है कि वो इंटेग्रेट करें. मेडिको लीगल ऑफिसर्स को कोने में फेंकने से ज्यादा बेहतर ये है कि उनको अपनी फैकल्टी का आप पार्ट बना के लेके चल सकें. उनको पढ़ाइए, उनको लिखाइए, उनको काम करने के लिए भेजिए और उनके प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए. जब आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो एज इट इज फोरेंसिक्स तो इंप्रूव होगा ही होगा, साथ ही साथ मेडिको लीगल सिस्टम को भी आप स्ट्रेंथन करोगे. मैं पिछले 8-9 सालों से मुसलसल ये सुन रही हूँ, आई एम हियरिंग this constantly that जो मेडिको लीगल सिस्टम है उसको नहीं छोड़े. फोरेंसिक मेडिसिन जो है वो सब्जेक्ट हमारा छोटा करते जा रहे हैं. पीएमडीसी ने हमारे शायद 100 घंटे कर दिए हैं, हमें नहीं मिलते. क्यों नहीं मिल रहे यार? मेडिसिन उस वक्त मेडिसिन है, सर्जरी उस वक्त सर्जरी है जब तक आपके पास उसका प्रैक्टिकल है. जब आप मेडिको लीगल में हाउस जॉब देंगे, जब आप मेडिको लीगल में रेजिडेंसी देंगे, जब आप मेडिको लीगल में प्रैक्टिकल मेडिको लीगल में, फोरेंसिक में रेजिडेंसी मत दीजिए, फोरेंसिक में नहीं दीजिए. कितनी बार होता है कि मेडिको लीगल फोरेंसिक मेडिसिन में रेजिडेंसी करने वाले लोग कितनी बार आते हैं ऑटोप्सी देखने के लिए? कितनी बार गए? 10 ऑटोप्सी देखनी है, 20 ऑटोप्सी देखनी. दे आर सपोज्ड टू स्पेंड देयर एंटायर टाइम इन द मेडिको लीगल डिपार्टमेंट. वो क्या करते हैं? टू बी ऑनेस्ट, वो क्लासेस होती हैं थ्योरेटिकल. आपने हफ्ते में 2 मरतबा जाके ऑटोप्सी देख ली, 3 मरतबा आपने पॉइजन का केस देख लिया, 4 मरतबा आपने मेडिको लीगल केस कोई देख लिया. उसके बाद आपने वहां सेटिंग कर ली और सेटिंग करके ई-लॉग पे क्वेश्चन जो पेपर आपके जो वो हैं, व्हाट डू यू कॉल देम, द केसेस, वो आप लिख देते हो. आई मीन लाइक हु इज एक्चुअली practically spending time in the medical legal section to do FCPS? Who is practically and ethically spending time in the medical legal section to do diploma in medical jurisprudence? कोई नहीं कर रहा. I am challenging you. कोई नहीं कर रहा. मैं खुद FCPS कर रही हूँ और मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बाकायदा NOC है that in addition to my own duties मैं FCPS continue करूंगी. That is why I was posted as APS JPMC, क्योंकि फरत मिर्जा साहब जो थे वो उस वक्त वहीं पर JPMC में थे. So like जब तक मेरा प्रोफेसर, जब तक मैं इस सब्जेक्ट को, फोरेंसिक मेडिसिन को अपना सब्जेक्ट समझती हूँ, मैं मेडिको लीगल और फोरेंसिक को सेपरेट नहीं कर रही, मगर जब तक मेरा प्रोफेसर मेडिको लीगली साउंड नहीं होगा, मेडिको लीगली, मैंने मेडिकली नहीं बोला, जब तक मेडिको लीगली साउंड नहीं होगा तब तक वो मुझे क्या गाइडेंस देगा? Where do I go to? Whom do I go to? मेरे इस वक्त 4 कैंडिडेट्स और आई हैव पुश्ड देम कि जाओ जाके DMJ करो, डिप्लोमा इन मेडिकल जूरिस्ट. सो ऑल 4 ऑफ देम वी आर आस्किंग फॉर, मतलब उनको दे हैव टू डू देयर ड्यूटीज इन एडिशन टू फॉलोइंग द एंटायर 2-year पीरियड इन क्लासेस एज वेल. थ्योरेटिकल भी हो रहा है और प्रैक्टिकल भी हो रहा है. एक DMJ कैंडिडेट जो सिर्फ थ्योरेटिकल पे पास होता है, उसके सामने आप मेरे इन 4 को 2 साल के बाद बिठाइएगा, 2 साल भी नहीं, 6 महीने के बाद बिठाइएगा, एंड यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आई एम सॉरी, मैं बहुत बिटर ट्रूथ बोलूंगी, आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा वो बोलूंगी, मैं हार्श ब्रूटैलिटी आपको बताऊंगी जो मेरे सब्जेक्ट के साथ हो रही है, मेरे सेक्शन के साथ जो हो रही है. Why am I not taken as a proper, why am I not given the prestige that, you know, a faculty member of forensic medicine is enjoying? Why not? क्यों नहीं मेरे MLO को वो इज्जत दी जा रही? Why not? I'll move on. फिर आगे भी इसमें यही बात है. सारी आज जो बात है ना, डॉक्टर सलमा कुंडी साहिबा जो हैं उन्होंने हमें और प्रोफेसर साहब जो हैं उन्होंने हमें इजाजत दी, तो अब ये बहुत कड़वी बातें हैं जो मैं आज करने वाली हूँ. आई एम सॉरी टू से दिस, बुरा लगे तो आई अपोलोजाइज इन एडवांस, बट दिस इज द बेयर ट्रूथ. करंट मेडिको लीगल सिनारियो क्या है? एथिकली मर्की सिस्टम है. एथिक्स नाम की चीजें बहुत कम हम यूज करते हैं.
मतलब कॉन्सेंट का बताना कि कॉन्सेंट लेना कितना इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट की डॉक्यूमेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. एक विक्टिम को किस तरीके से देखा जाता है, एग्जामिन किया जाता है, उसका रेफरल पाथवे क्या बनता है, उसका साइकोलॉजिकल रिहैब कितना इंपॉर्टेंट है, उसका सोशल रिहैब कितना इंपॉर्टेंट है, उसको मुझे कौन कौन सी कुछ नहीं सर्विसेज बोला, प्रोवाइड शामी करनी मम्मी है, कर रही हूँ, माँ कहाँ कह रही थी कहाँ अभी मुझे भेजना है, 1 बजे मुझे कुछ नहीं बताया जाता. हमारा मैं सीना अटैक बसीना करूंगी और सारी के सारी रिवायात जो हैं वो चली आ रही हैं. I learnt it from my seniors and my seniors taught it to me, and now whatever I teach to my juniors वो वही लेके जाएंगे. अल्लाह का शुक्र है, I am indeed blessed कि मेरे seniors ethically sound थे. I am blessed that I was taught by the very few medical legal officers who were ethically sound. और मुझे जो मेरा academic background मिला as diploma in my during my diploma days, वो बहुत फर्क पड़ा, वो बहुत फर्क पड़ा. हमीदुल्लाह साहब काइंडली अपना माइक ऑफ कर लीजिए बिकॉज मैं बात नहीं कर पा रही. शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. हमारे पास लेजिस्लेशंस, दूसरा इशू है लेजिस्लेशंस का. तो जो लेजिस्लेशंस का इशू है वो इनइफेक्टिव एक्सडॉन्ट लेजिस्लेशंस है, लाइक दे एग्जिस्ट. ये मेरा दूसरा मसला है. लेजिस्लेशन मौजूद है, एंटी रेप एक्ट मौजूद है, सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट मौजूद है, ठीक है, मेरे पास मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस मौजूद है, मगर वो फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस दे आर इनइफेक्टिव. वो काम नहीं हो रहा, उसकी इम्पोजिशन नहीं है. मेरे पास स्केर्स एंड इनएक्विटेबल सर्विसेज हैं. लाइक जिस जगह पे मेरा जो जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर की जो हालत है, वहां मेरे पास 8 MLOs हैं, जिनमें से 2 बीमार हैं, और मैं सिंध का सबसे बड़ा मेडिको लीगल सेक्शन जो है वो 6 MLOs के साथ चला रही हूँ. मेरी एक WMLO अगर बीमार हो जाए तो मेरे पास टोटल 3 WMLOs रह जाती हैं. मेरे पास इस वक्त अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जो सेकंड लार्जेस्ट मेरा वो है, उसमें मेरे पास 5 MLOs हैं, 2 एब्सकॉन्डिंग स्टेटस पे हैं जिनको कोई पकड़ा नहीं जा रहा. सिविल हॉस्पिटल में मेरे पास 4 MLO हैं, 1 एब्सकॉन्डिंग है जिसको कोई पकड़ नहीं है. तो मेरे पास स्केर्स है एंड इनइक्विटेबल सर्विसेज हैं. मेरे पास सिविल हॉस्पिटल में सिर्फ 2 WMLOs हैं. आप सोच सकते हैं कि 3 करोड़ की आबादी में से मेरे पास टोटल 8 WMLOs जो हैं, वो 3 करोड़ में से 1.5 करोड़ जो हमारे पास फीमेल्स हैं, उनको कैटर करेंगी. Is it humanly possible? Is it humanly possible? हमारे पास आर्मीन का केस हुआ. आर्मीन वो बच्ची थी जिसको रात को क्रॉस फायर में उसकी डेथ होती है. हम रात में उसको बॉडी को रखवा देते हैं कोल्ड स्टोरेज में बिकॉज मेरी WMLO मौजूद नहीं थी एंड शी वाज कॉन्स्टेंटली ऑन ड्यूटी. वो रात को 9 बजे अपनी ड्यूटी ऑफ करके घर गई है. मेरे पास नाइट में उस वक्त कोई कवर नहीं था. मैंने क्या फेस किया? मैंने इंक्वायरी फेस की. क्यों? क्योंकि स्केर्स रिसोर्सेज थे. इतना अब आई एम indebted again to my department कि मुझे लोग दिए जा रहे हैं. मेरे पास इस वक्त 6 WMLOs और आ रही हैं. मेरे पास 8 MLOs के लिए मुझे कहा जा चुका है, 3 उनमें से आ चुके हैं, 5 और आने वाले. इवन देन मेरे पास काफी नहीं है लोग. तो मैं आपको कराची जैसे शहर की हालत बता रही हूँ. सिंध के बाकी शहरों की क्या बात बताऊं, KP की क्या बात बताऊं, पंजाब की मैं आपसे क्या बात करूं, और बलोचिस्तान की मैं क्या बात करूं. आई एम प्रिवी, आई एम इन टच विद ऑल ऑफ दीज पीपल. आई नो कितना मुश्किल है हमारे लिए एग्जिस्ट करना, हमारे लिए काम करना. हमारा वर्कफोर्स अनट्रेन्ड आता है. मेडिको लीगल ऑफिसर वो बन जाता है जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है. नाउ वी हैव मेड इट मैंडेटरी. 2019 में मैं एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कर चुकी हूँ अपने मेडिकल ऑफिसर्स की, जो ऑल अक्रॉस द प्रोविंस ऑफ सिंध थे. उसमें से हमारे पास 186 ने ज्वाइन किया था और आई थिंक 123 ने कंप्लीट की थी. तो हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग की थी अपने मेडिकल ऑफिसर्स की या मेडिको लीगल ऑफिसर्स की हु आर नाउ इन एक्टिव फोर्स. मेरे डिफरेंट ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के जो मुझे अलग अलग वक्तों में दे सेंड मी देयर प्रॉब्लम्स कि मैडम ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैडम ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैडम ये प्रॉब्लम हो रहा है. यार द प्रोफेसर ओवर देयर, द नियरेस्ट प्रोफेसर, द नियरेस्ट फैकल्टी ऑफ अ नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज शुड बी अवेलेबल टू देम. व्हाई नॉट? इसकी वजह से क्या होता है कि मेरा वर्कफोर्स एक तो ये कि कम है तो अनविलिंग हो जाता है. 4-5 के ऊपर आपने पूरा लोड डाल दिया है. दूसरा, हमारे पास कोई पाथवे नहीं है जिससे हम गाइडेंस ले सकें. जब हम एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड में बैठे होते हैं एज मेडिको लीगल ऑफिसर्स, तो हमें ही करप्ट समझ के और हमें ही मुजरिम समझा जा रहा होता है.
Lastly, ghost and absentee workers. जब तक पूरे पाकिस्तान के ghost workers नहीं खत्म किए जाएंगे, especially those जो essential services में serve कर रहे हैं, तब तक हमारा मसला नहीं solve होगा. कराची जैसे शहर में मेरे पास 3 absconding MLOs हैं, 3, उनमें से 2 अब्बासी शहीद में posted हैं और 1 सिविल हॉस्पिटल कराची में posted है. उनके लिए मैं रिपीटेडली लिख के भेज चुकी हूँ. अभी इस वक्त चूंकि सैलाब की सूरत हाल है, वी आर मतलब अंडर वाटर, लिटरली पूरा सिंध डूबा हुआ है, मेरा पूरा मुल्क डूबा हुआ है, सिंध में तो बहुत बुरी हालत हुई हुई है, तो हम इस वक्त कुछ कर नहीं पा रहे हैं. बट स्टिल होपफुली ऐसा कुछ हो. हम गोस्ट वर्कर्स जब तक खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम एब्सेंटी वर्कर्स को खत्म नहीं करेंगे, तब तक मेडिको लीगल सिनेरियो इंप्रूव नहीं होगा. वी नीड बेटर वर्कर्स, वी नीड हैप्पी वर्कर्स. अगर हमारे वर्कर्स सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपको अच्छी सर्विसेज नहीं मिलने वाली, अच्छे लोग नहीं मिलने वाले. मैं एट दिस स्टेज इन माय करियर, मेरे अभी 10 साल बाकी हैं रिटायरमेंट में, टू बी ऑनेस्ट आई एम थिंकिंग ऑफ लीविंग. मैं छोड़ना चाह रही हूँ. मैं थक गई हूँ इस सिस्टम से लड़ते लड़ते. मैं 17 में थी तो भी लड़ रही थी, मैं 18 में थी तो भी लड़ रही थी, मैं 19 में आई तो भी लड़ रही हूँ, और मैं एज पुलिस सर्जन कराची भी लड़ रही हूँ. एंड नाउ आई जस्ट वांट टू लीव. थक गई हूँ मैं लड़ के. आई एम टायर्ड. मगर क्या है कि अगर मुझे क्या होता है कि 2 दिन मेरा यही वाला मूड होगा और तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसा केस या कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिससे मेरा हौसला बुलंद होगा, एंड आई कम बैक टू इट. आई एम अ sucker for punishment, you could say, for continuing on as long as I did. This department has given me hypertension. It has brought me to borderline diabetes. This has given me immense psychological and mental stress. Matlab, there are times when I am ready to quit, but why I am not quitting, I still don't know. पता नहीं किस दिन quit करूंगी. अब देखते हैं वो कब आता है quitting वाला time. But anyways, let me move on, please. Constitution of Pakistan guarantee करता है protection of every citizen, Article 4, right to life, Article 9, right to dignity, Article 14, right to health is a right to life. Primary right of a citizen is to have access to essential services. Medical legal services are essential services. Emergency services are essential services. ये Constitution of Pakistan guarantee कर रहा है. और अगर मेरे लोगों को ये चीज नहीं मिल रही है, चाहे वो एबल बॉडीड हो, चाहे वो मेंटली चैलेंज हो, चाहे वो ट्रांस हो, चाहे वो लाइक फिजिकली चैलेंज्ड हो, अगर उनको ये नहीं मिल रही है तो आई एम सॉरी, वी आर नॉट अपहोल्डिंग द Article 4 of Article 9 and Article 14 of Constitution of Pakistan. That's a food for thought. Absolute lack of empathy है, zero sensitivity index है towards victim and alleged accused. हमारे ही साथियों में से कुछ हमारे मेहरबान गुजरे हैं हमसे पहले, जो हमें ये समझाते थे कि ये क्रिमिनल होते हैं सारे जो तुम्हारे पास आते हैं. जो विक्टिम आ रहा है वो भी क्रिमिनल है, जो यू अंडर ट्रायल प्रिजनर आ रहा है वो भी क्रिमिनल है. और एक सर्टन लेवल पे ये चीज इतनी इनग्रेन कर गई है मेडिको लीगल में कि जो आ रहा है वो क्रिमिनल है. तो क्रिमिनल, यार हम कौन होते हैं क्रिमिनल कहने वाले? विक्टिम को मैं क्यों क्रिमिनल कहूंगी? मैं अंडर ट्रायल को क्यों क्रिमिनल कहूंगी? मैं एलिज्ड अक्यूज्ड को क्यों क्रिमिनल कहूंगी? मैं ओवरवर्क्ड हूं, यस, हो सकता है मेरे बहुत सारे लोग अनइंटरेस्टेड भी हैं, मगर वी आर नॉट डीलिंग विद क्रिमिनल्स. एक माइनर का, बच्चे का सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम जो है आता है हमारे पास, उसके लिए 20 से 40 मिनट की जरूरत है. अगर बड़ा हो तो 20 मिनट, और अगर माइनर है तो 40 मिनट. क्या मैं एज अ मेडिको लीगल ऑफिसर उसको 40 मिनट दे रही हूँ? क्या मैं मेजर इंजरीज को माइनर में कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ? क्या मेरे लोग मेजर को, कितने सारे एमएलओ, 2-3 एमएलओ को मैं जानती हूँ जो मेजर इंजरीज को माइनर इंजरीज लिखते हैं. क्यों? क्योंकि कोर्ट ना जाना पड़े. तो फिर वो एमएलओ जो माइनर इंजरीज को मेजर कर देता है, जो पैसे लेता है, जो करप्ट है, पहले वाले ने करप्शन नहीं की, सपोजिटली पैसे नहीं लिए, मगर मेजर इंजरी को माइनर में कन्वर्ट कर दिया ताकि कोर्ट तक ना जाना पड़े, वो ज्यादती ज्यादा है या वो ज्यादती ज्यादा है जो पैसे लेके माइनर इंजरी को मेजर में कन्वर्ट करता है? अगेन, दैट इज फूड फॉर थॉट. एक फॉल्टी मूव ऑन माय पार्ट, एक फॉल्टी मूव, एक अनइंटरेस्टेड मूव, एक थके हुए एमएलओ की मूव on part of the medico legal officer while documenting the medico legal certificate is the difference between conviction and acquittal. आप एक अपनी गलती करके conviction पे भी लेके जा सकते हो और acquittal तक भी लेके जा सकते हो. That is again
फूड फॉर थॉट, मेरा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है. मेरा सब्जेक्ट 1 साल का नहीं है. मेरा सब्जेक्ट, जो लोग काम करते हैं, जो लोग इसमें टाइम लगाते हैं, जो सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं है, जो मेडिको लीगल को, जो फोरेंसिक मेडिसिन को प्रैक्टिकली डील करते हैं, उनके लिए ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कन्विक्शन एंड अक्विटल. कौन कह रहा है कि मेरा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है? आई थिंक ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए, ये बात प्रोफेसर हजरात को करनी चाहिए. आई शुड नॉट बी द वन टेलिंग यू ऑल दिस. मेडिको लीगल रिफॉर्म्स कमेटी पे मैंने सर्व किया, वहां पर हमने परफॉर्मर्स इंप्रूव किए. वो परफॉर्मर्स हमने कोशिश करके 1 बनाया फॉर एवरी केस. SOPs किए. अच्छा, इन परफॉर्मर्स को वेटिंग हुई. वेटिंग प्रोसिक्यूटर, सिंध प्रोसिक्यूटर जनरल के ऑफिस में हुई, जहां जाके मैंने 2.5 घंटे स्टैंड करके I withstood every single question, every single query कि why I added something particularly into a particular performer. ये मेरे 23 साल की मेहनत का निचोड़ है, 22 साल की मेहनत का निचोड़ है. And I'm proud of the fact कि मैंने ये बहुत मेहनत से काम किया है under Professor फरहत हुसैन मिर्जा. SOPs डिवाइस किए हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाए हैं. इस वक्त मैं SOPs बनाने जा रही हूँ इंशाल्लाह ताला प्रोफेसर शाहजहां कटपर के साथ फॉर डेंटल इंजरीज. उनके साथ हमको स्टडी करना है. एक पायलट प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डेंटल इंजरीज का अभी हमारे पास कोई SOPs नहीं है. रेफरल पाथवेज डिवाइस किए हैं. रेफरल पाथवेज में पहले क्या होता था कि जी रेडियोलॉजी में भेज दो, सर्जरी में भेज दो, गायनी में भेज दो, मेडिसिन में भेज दो. नहीं भाई, send the person to psychology, send the person for mental health rehab, send the person to an NGO or to women's development department or to social welfare department for social rehabilitation. हमने गाइडलाइंस मैनुअल डेवलप किया है, जिसमें हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस लिखे हैं इन द मेडिको लीगल फील्ड. जॉब डिस्क्रिप्शंस बनाई हैं. सेपरेट मेडिको लीगल कैडर की बात हम कर रहे हैं विद इंसेंटिव. सिंध में अभी सेपरेट मेडिको लीगल कैडर नहीं है, इंसेंटिव भी नहीं है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इट. वी हैव डिस्क्राइब्ड इन द मेडिको लीगल सिंध मेडिको लीगल रिफॉर्म्स कमेटी कि अगर मेजर मेडिको लीगल सेंटर है, लाइक वहां पे ऑटोप्सी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पर्सनल क्या है, और अगर वहां पर ऑटोप्सी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड हो रही, तो आप फिर मिनिमम नंबर क्या रखेंगे. मॉर्चरी असिस्टेंट्स पढ़े लिखे हमें चाहिए, मैट्रिक पास चाहिए. मैं ऐसे ही 8 मॉर्चरी असिस्टेंट्स को पूरा मॉड्यूल डेवलप करके 1 साल की ट्रेनिंग दे चुकी हूं. एंड इंशाल्लाह सून वी विल बी इंडक्टिंग देम एंड इनिशिएटिंग द प्रोसीजर ऑफ इंडक्टिंग देम इनटू द सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट, ताकि ये हमारे ट्रेन्ड मॉर्चरी असिस्टेंट्स हों. फोरेंसिक नर्सेस की बात मैंने की. फोरेंसिक नर्सेस इसलिए कि बहुत सारी नर्सेस से मैं मिलती हूं जो आके मेडिको लीगल में काम करना चाहती हैं. अगेन, आपकी आवाज जो है वो ऊपर तक जाती है, PMC तक जाती है. PMC में किसी को कहिए कि फोरेंसिक नर्सिंग का जो प्रोटोकॉल होता है, जो नर्सेस का पूरा करिकुलम है, उसमें फोरेंसिक मेडिसिन को इंक्लूड किया जाए. जो BDS का करिकुलम है, उसमें फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी को इंक्लूड किया जाए, ताकि हमारे पास पहले से ये लोग मौजूद हों, ऑलरेडी वो पढ़कर आ रहे हों. सिर्फ MBBS का काम नहीं है. नर्सेस हमें चाहिए, हमें वार्ड बॉयज चाहिए, हमें पढ़े लिखे फोरेंसिकली इंक्लाइंड लोग चाहिए. जब तक हम ये पढ़े लिखे फोरेंसिकली इंक्लाइंड लोग नहीं डालेंगे, तब तक, कैसर सजाद साहब, आई होप यू आर लिसनिंग, जब तक हम ये लोग नहीं डालेंगे, तब तक हमें मेडिको लीगल सिस्टम में इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा. मैं एक हद तक जा सकती हूं, मगर ये मूवमेंट PMC से शुरू होनी जरूरी है. Why is police surgeon not representing the medico legal over there? Why not? क्यों नहीं कर रहा वहां पुलिस सर्जन? क्योंकि पुलिस सर्जन बहरहाल एक प्रैक्टिकल मेडिको लीगल, प्रैक्टिकल फोरेंसिक एस्पेक्ट है. Why aren't we not represented over there? ये मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है. PMC में पाकिस्तान this I'm sorry PMA में क्यों नहीं मैं represented? Why? मेरी representation कहाँ है? किधर है मेरी representation? अगर फोरेंसिक मेडिसिन को आप वो कर रहे हो, फोरेंसिक मेडिसिन के मैं साथ में खड़ी हूँ. मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हूँ फोरेंसिक मेडिसिन का. आप मेरे बगैर फोरेंसिक मेडिसिन कंप्लीट नहीं कर सकते. जब आप कंप्लीट नहीं कर सकते, तो मुझे आपको रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी. मुझे आई मीन द मेडिको लीगल सिस्टम, आपको हमें रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी. 2 फिंगर टेस्ट पे काम किया. 2 फिंगर टेस्ट रेप विक्टिम, मेरा काम जो था 2010 में जब मैंने शुरू किया था, तो मैं 1999 से ये लिख रही थी. 2010 में जब मैंने काम करना शुरू किया, तो हम क्या टर्म लिखते थे? विजाइना एडमिट्स इंडेक्स फिंगर्स या 2 इंडेक्स फिंगर या 2 फिंगर्स. इट इज आइदर टाइट और लूज. कोई मेंशन नहीं करना है कि इंजरी है या नहीं है, टेंडरनेस है या नहीं है. कानून शहादत 164F, आर्टिकल 67, 69, एविडेंस एक्ट पढ़ के देखिए. उसमें
ये बात रिपील हुई है कि आप किसी भी सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम को या किसी भी प्रोसिक्यूट्रिक्स को विक्टिमाइज नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर। In 2016 मैंने बायोमेडिकल एथिक्स पढ़ा है, मैंने एग्जॉस्टिवली पढ़ा है, and I knew I was wrong in using the term loose or tight or admitting. I stopped using these terms in 2017 as an on ethical grounds. आज भी मेरे अपने शहर में ऐसी 3 WMLOs मौजूद हैं जो आज भी ये टर्म्स यूज करती हैं, जबकि ये ना सिर्फ टू फिंगर टेस्ट इलीगल हो चुका है फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड फ्रॉम सिंध हाई कोर्ट बोथ, तब भी दे आर इंसिस्टेंट कि नहीं जी ये सिलेबस का पार्ट है, हम तो लिखेंगे। What does it do? It takes off the burden from the WMLO कि वो कोई इंजरीज पे रिपोर्ट करे। अरे बीबी, I simply explain it to you कि एक औरत जो कि आप लूज कह रहे हो उसको, have you gone through the reason for the vaginal looseness? Has she given birth to 4 children? 4 बच्चों के बाद लूज वेजाइना नहीं होगा तो क्या होगा? मगर आपने लूज को टारगेट किया कि नहीं जी ये तो प्रोस्टिट्यूशन में जा रही है, ये लूज कैरेक्टर है, that is why her vagina is loose. The only permissible fact is कि वर्गो इंटैक्टा में tip of little finger can be admitted and can be mentioned. This is the extent to which I have studied this. ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने देखा है, ये मैंने प्रैक्टिस किया है। 2017 से मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैंने 2 फिंगर टेस्ट के लिए जो पूरी सिंध हाई कोर्ट की वो थी, उसके लिए मैंने अपनी गवर्नमेंट को वहाँ रिप्रेजेंट किया, हेल्थ डिपार्टमेंट को मैंने रिप्रेजेंट किया, इसके लिए मैंने पूरी पिटिशन का रिप्लाई बनाया एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू से दिस कि मेरी पिटिशन का रिप्लाई एक्सेप्ट हुआ और फिर यहाँ पर सिंध में भी 2 फिंगर टेस्ट को इलीगल करार दिया गया। So I am honored, deeply humbled कि ये सब कुछ किया है। फोरेंसिक साइंस लैब की हमने बात की, मेडिको लीगल डायरेक्टरेट की हम बात कर रहे हैं, फोरेंसिक साइंस लैब पे मैं सर्व कर रही हूँ, सिंध जो फोरेंसिक साइंस लैब कमेटी है उस पर, उसमें हमने कहा है हम 13 डोमेन्स लाना चाह रहे हैं। 13 डोमेन्स में डीएनए भी हो, टॉक्सिकोलॉजिकल भी हो और उसके साथ सीरोलॉजी भी हो, फिर बैलिस्टिक्स भी साथ में आ जाए, फिर फिंगरप्रिंट्स भी आ जाए। मेडिको लीगल डायरेक्टरेट की हम बात कर रहे हैं, उसका हायरार्की बनाया है, ऑर्गेनोग्राम बनाए हैं, जेडीज बनाए हैं। एक मैंने और रिकमेंडेशन दी है कि बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स हमें चाहिए, एसएनई हो, बजटरी एलोकेशंस हो, ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो, ये बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स के थ्रू हो। कोई भी पुलिस सर्जन बन के बैठ गया XYZ, उसने अपने साथ ग्रेड 17 ग्रेड 18 का एक बंदा लगा लिया, उन्होंने अपनी मर्जी से जी एसएनई चेंज कर दी और मेरी हालत क्या हो गई है कराची में कि मेरे पास जो कराची की मेरी जो एसएनई है पुलिस सर्जन ऑफिस कराची की, उसमें मेरे पास 17 WMLOs तो 17 ग्रेड की WMLOs मौजूद हैं, जो मेरे पास 9 है, 20 की सीट्स हैं, मगर जब वो प्रमोट होंगी 18 में तो मेरे पास 18 की एक सीट है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल हु आर इनकॉम्पिटेंट इन द मेडिको लीगल फील्ड सिट डाउन एंड मेक द एसएनईज। अब मुझे उस एसएनई पे बाकायदा मैंने गवर्नमेंट को रेकमेंड किया है, हेल्थ डिपार्टमेंट को रेकमेंड किया है कि एडवाइजर्स की एडवाइस के अलावा एसएनई में कोई चेंज ना लाया जाए। जब तक एसएनई पे वो लोग नहीं बैठेंगे, कोई भी आके बैठ जाएगा और कोई भी अपनी मर्जी से, इनकॉम्पिटेंट लोगों की मर्जी से वो बना देगा वहां पर कि मेरी 17 ग्रेड की WMLOs जब प्रमोट होंगी 9 ग्रेड 17 से 9 है, जब प्रमोट होंगी 20 में, सॉरी 18 ग्रेड में, तो मेरे पास कोई सीट ही नहीं है। यानी पूरे कराची के लिए एक 18 की WMLO, यार आई नीड एटलीस्ट 4 WMLOs इन सिविल, 18 की, 4 इन JPMC एंड 4 इन अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। कहाँ चली गई मेरी सारी WMLO? This is what happens. I have learned from my mistakes. I have learned from the mistakes committed by incompetent people in my department. इसीलिए मैं बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स को रेकमेंड कर रही हूँ। बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स वो लोग होंगे जो ऑफ गुड स्टैंडिंग होंगे, जिनकी एक स्टैंडिंग होगी मेडिको लीगल में, जिनकी एक स्टैंडिंग होगी फोरेंसिक में। उनको जब तक हम मिलके, जब तक वो ना रेकमेंड करें, उनको दे शुड हैव अ सॉलिड रीजन फॉर चेंज इन एनीथिंग। They should have a transfer posting में भी उन लोगों को ऐड किया जाए। This is what I'm recommending at the level of not only Sindh बल्कि at all levels. इसमें से pick and choose कीजिए, जो आपके सूबे में अप्लाई होता है उसको लीजिए और उसको अप्लाई कीजिए। I'm sure if you need my help in any way, I am here to help you out with my SOPs, my JDs, my budgetary allocations, जो बनाई हैं चीजें, जो अब वेटिंग के प्रोसेस से गुजर के यहाँ तक आई हैं कि अब वो नोटिफाई होने जा रही हैं। So we have gone through the entire process. पिछले 3 साल से मैं ये काम कर रही हूँ and I can say with confidence कि हमने बहुत अच्छी एक चीज बनाई है जो मेरे ख्याल में quite adaptable है in all parts of the country.
एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 में डेफिनेशन ऑफ रेप को ब्रॉड किया गया. सिर्फ पिनाइल पेनिट्रेशन पर हम नहीं रहे, हम चले गए ऑब्जेक्ट रेप की तरफ. हमने सारे जेंडर्स को डाला, हमने बकल रेप की बात की, हमने एनल रेप की बात की, हमने वेजिनल रेप की बात की, हमने ऑब्जेक्ट रेप की बात की है. सारे जेंडर्स को उसमें हमने डाला है. 2 फिंगर टेस्ट को एक बार और इलीगल करार दिया है. विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच किया है, टाइमलाइंस बना दिए हैं कि जी यहाँ केस रिपोर्ट होता है, केस को 15 दिन में आपने इन्वेस्टिगेट करना है, 2 महीने के अंदर अंदर वो केस जो है वो चार्ज फ्रेमिंग पे जाना है, और 4 महीने के अंदर अंदर उसका फैसला होना है. तो मैंने सिर्फ ये काम नहीं किया कि मेडिको लीगल से रिलेटेड है, मैंने उसके एसओपीज बनाए हैं फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, मैंने उसके एसओपीज बनाए हैं फॉर प्रोसिक्यूटर्स, मैंने उसके एसओपीज बनाए हैं फॉर गाइडेंस टू द ऑनरेबल जजेस. उसके साथ साथ एक मैंने डिक्शनरी बनाई है जिसमें सारे हमारे जो मेडिको लीगल टर्मिनोलॉजीज होते हैं, दे हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इजी इंग्लिश. इन सबको हमने इजी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. फिर एंटी रेप क्राइसिस सेल्स को डिजाइन किया. एंटी रेप क्राइसिस सेल्स आर टू वर्क इन अकॉर्डेंस एंड साइड बाय साइड विद द मेडिको लीगल सेक्शन. जहां पर मेडिको लीगल सेक्शन अवेलेबल नहीं है वहां वो मेडिको लीगल सेक्शन अवेलेबल हो जाएगा. एंटी रेप क्राइसिस सेल में ना सिर्फ आप एक ही जगह पर आप उसको विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच रखते हुए ना सिर्फ आप द पर्सन विल बी एग्जामिन्ड, बल्कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी वहां मौजूद होगा, प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से भी वहां पर रिप्रेजेंटेशन होगी, एंड साइकोसोशल सपोर्ट भी होगा. सो वी हैव ट्राइड, एंड प्लस ये एक किसी हॉस्पिटल सेटिंग में होगा जहां मेरे रेफरल पाथवेज ओपन होंगे कि वहां मेरा मेंटल हेल्थ भी जा रहा है, वहां गायनी का रेफरल भी जा रहा है, वहां ईएनटी, आई, रेडियोलॉजी, जिस जिस स्पेशलिटी की जरूरत है वहां पर जा रहा है. सो वी हैव ट्राइड टू मेक इट एज प्रैक्टिकल एज possible. This is what we have done in Anti-Rape Investigation and Trial Act 2021. Moving forward, stopgap measure, फिलहाल सबसे पहले ये कीजिए कि डिप्लॉय कीजिए ह्यूमन रिसोर्स, मॉर्चरी असिस्टेंस इंक्लूडेड. नॉन ट्रांसफरेबल इस डिपार्टमेंट को बनाइए, कॉन्सेंट के साथ लेकर आए, लोग इंसेंटिवाइज करें. हमने रेकमेंड किया है कि एक बेसिक सैलरी इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, जो अनट्रेन्ड मैन पावर इंडक्ट होता है उन्हें उस वक्त तक काम करने मत दीजिए जब तक उनकी कम से कम 1 महीने की बेस्ट प्रैक्टिसेस इन मेडिको लीगल ना हो जाए. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को यूज किया जाना चाहिए जो ऑलरेडी मैंने डेवलप कर चुकी हूँ इन सॉर्ट ऑफ इन एसोसिएशन विद एन एनजीओ लीगल एड सोसाइटी, जिन्होंने बहुत ज्यादा मुझे इस मामले में हेल्प किया है. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वो है, they are actually assisting the health department in development of all this. Key performance indicators को use किया जाए मेरे department में with transparency. Post graduate studies ना सिर्फ forensic medicine में हमारे लिए open कीजिए, make it easy for us. Make it easy for us. I am asking Sindh government to subsidize or provide monetary subsidy for 5 postgraduate candidates in the subject of forensic medicine. वो DMJ करने के लिए, जैसे अभी मेरे 4 कैंडिडेट्स हैं, 4 MLOs हैं जो DMJ करने के लिए जा रहे हैं ज़ियाउद्दीन में मैडम कुत्सिया के पास. फिर हमें एडमिनिस्ट्रेशन में चाहिए. मैं जब ग्रेड 19 में आई तो मुझे अलिफ बे भी नहीं आती थी एडमिनिस्ट्रेशन की. मुझे 6 महीना तो ये समझने में लगा कि अल्लाह का शुक्र है, I served with Hamid Padiyar साहब. तो Hamid Padiyar साहब was excellent in administration, so I learned literally on his right hand. तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, मगर 6 महीने फिर भी मुझे समझने में लग गया एडमिनिस्ट्रेशन को. तो मुझ जैसे लोगों को जो APS के लेवल तक जा रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, उनको कोर्सेज कराए जाएं 6-6 महीने के. फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन हो एलाइड सब्जेक्ट्स के लिए. यार आप अगर रेडियोलॉजी से फोरेंसिक रेडियोलॉजिस्ट नहीं बना सकते तो फोरेंसिक से रेडियोलॉजिस्ट बना लो. मेडिको लीगल ऑफिसर जिसको आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए भेजा है, जिसको हम भेज रहे हैं, उसको कहो कि अब वो DMJ कर चुका है, अब जाके 2 साल रेडियोलॉजी भी करे. वो ऑलरेडी उसका माइंड फोरेंसिकली इंक्लाइंड है, तो जब वो रेडियोलॉजी करेगा तो वो फोरेंसिक रेडियोलॉजिस्ट ही कहलाएगा. ओपन दोस फील्ड्स फॉर अस. साइकाइट्री ओपन करो, ओडोंटोलॉजी ओपन करो, पैथोलॉजी ओपन करो, हमारे लिए ये फील्ड्स खोलो. दैट विल कम फ्रॉम द टॉप. ये PMC से आएगा, मेरे पास से नहीं आएगा. ये डाउ मेडिकल कॉलेज के उससे आएगा, ये ज़ियाउद्दीन से आएगा, ये KEMU से आएगा, ये निश्तर मेडिकल कॉलेज से आएगा, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल से आएगा. मतलब मुझे ओपन करो यार, आप मेरे लिए रास्ते खोलो, मुझे करियर पाथ दो. फोरेंसिक एक्सपर्ट्स फोरेंसिक मेडिसिन से लो. हम उनके इंतजार में बैठे हुए हैं. रेडियोलॉजिस्ट कोई एक उठ के आ जाए यार, अल्लाह करे कोई तो रेडियोलॉजिस्ट, कोई तो फोरेंसिक रेडियोलॉजी कर ले, अल्लाह करे कोई तो फोरेंसिक साइकाइट्री कर ले. उसको क्या मिल रहा है रेडियोलॉजी में? तो गिव अस द अपॉर्चुनिटी.
ہمیں فورینسک میں میرے پاس پوسٹ گریجویشن ہے, میرا 1.5 رہ گیا ہے اس کا فورینسک کا, فورینسک میڈیسن کا 4 سال کا میرا ہے. مجھے جانے دیجیے نا سائیکائٹری میں, کرنے دیجیے مجھے 2 سال کی سائیکائٹری. آئی ول بی اے فورینسک سائیکائٹرسٹ فار یو, پکا وعدہ. پرائیویٹ پریکٹس نہیں کروں گی, یا میں ریڈیولوجی میں جانا چاہتی ہوں تو مجھے ریڈیولوجی میں جانے دیجیے. گیو می اے چوائس. 2 سال فورینسک پڑھا کے 2 سال. سر رشید میاں صاحب آپ جیسے لوگ اگر ہمارے لیے بولیں گے تو ہمارا سبجیکٹ امپروو ہوگا. ہمیں اپنے ساتھ آپ لے کے چلیں. آئی ایم ریئلی سرپرائزڈ کہ آپ ہمیں ساتھ میں نہیں لے کے جاتے. ہمیں ساتھ میں لے کے چلیے. میڈیکو لیگل کو اب جب ساتھ لے کے چلیے گا تبھی امپروو ہوگا میڈیکو لیگل, اور یہ ون ون سچویشن ہے دونوں کے لیے. جب میڈیکو لیگل امپروو ہوگا تو فورینسک میڈیسن اسٹرینتھن ہوگا, جب فورینسک میڈیسن اسٹرینتھن ہوگا تو میڈیکو لیگل امپروو ہوگا. اٹس اے ون ون for the community, for the country, for the people. It's a win-win for the Constitution of Pakistan. کریئر پاتھ میں یہ میرے خیال میں ساری میں نے بات کر لی ہے. میڈیکو لیگل سینٹر کو کلینک بولیے, میرے خیال میں کلینک کہلائے گا. یہی میں نے چیف سیکرٹری صاحب کی بھی ریکمنڈیشن جو ہم نے بنائی ہے. ہاؤس جاب آفر کیجیے, ہاؤس جاب آفر کیجیے اور نیچرل پروگریشن دیجیے پوسٹ گریجویشن ان فورینسک میڈیسن کو. مجھے جانے دیجیے ریڈیولوجی میں. میری ایم ایل او جو ڈی ایم جے کر آئے گا, یا میری ڈبلیو ایم ایل او جو ڈی ایم جے کر کے آئے گی, اس کو گائنیکالوجی میں کرنے دیجیے. وہ سرو کرے گی بعد میں, اس سے بانڈ فل کروائیے. لیٹ ہر سرو in the forensic in the medical legal section as a forensic gynecologist. Let her serve as a forensic psychiatrist. Let him serve as a forensic psychologist. Let them serve in the medical legal section. میرے پاس سے لیجیے آپ اپنے ایکسپرٹس. ریسرچ اب ہمارے پاس, آئی ایم سوری ٹو سے دس, جنرل پریکٹس یہ ہے, ڈیٹا کلیکٹ کرو یار. روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کتنے ہو گئے, اس میں سر پہ کتنی چوٹیں تھیں, ٹانگوں پہ کتنی چوٹیں تھیں, ریپ کے کتنے کیس آئے, ڈومیسٹک وائلنس کے کتنے کیس آئے, بازو میں کتنا چوٹ لگی, ہاتھ پہ کتنا چوٹ لگی, ہڈی کتنا ٹوٹی. آئی ایم سوری, یہ ریسرچ نہیں ہے, یہ پیپر ہے, یہ آرٹیکل پرنٹنگ ہے, آرٹیکل پبلشنگ ہے. یہ ریسرچ نہیں ہے. ریسرچ یہ نہیں ہوتی. ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے گیپ انالیسس کرنا ہے, گیپ انالیسس کرنا ہے اور ورکیبل سولوشن دینا ہے. ڈینٹل ٹراما اینڈ میڈیکل لیگل ورک کی میں بات کر رہی ہوں. اس کے ایس او پیز مجھے بنانے ہیں, تو مجھے وہاں پر پیٹرن آف ڈینٹل انجریز کو اسٹڈی کرنا ہے, اور پھر میں کروں گی. ایک لیجسلیشن چاہ رہی ہوں میں اٹمپٹڈ سوئسائڈ کے کیسز کے لیے. تو میں اب اس وقت پروفیسر مراد موسیٰ صاحب کے ساتھ, میڈم نرگس اسد کے ساتھ ایک سیلف ہارم پہ کام کر رہی ہوں ان کے ساتھ. تو میں چاہ رہی ہوں کہ یار ایک ڈیٹا ہو میرے پاس کہ جی دیکھیے اتنے سارے اٹمپٹڈ سوئسائڈ آئے تھے, تو کل کو میں مینٹل ہیلتھ لیجسلیشن پہ بات کر سکوں کہ جی اٹمپٹڈ سوئسائڈ کو پنشبل آفینس سے ہٹائیے. دس از اے کرائی فار ہیلپ. سرخ کفن میرا ہیش ٹیگ ہے. سرخ کفن پہ میں آج کل کام کر رہی ہوں. آئی ایم ڈیلنگ ود اونلی دوز کیسز جو پچھلے 5-6 مہینوں میں جن کی شادی ہوتی ہے لڑکیوں کی, اور وہ ہومسائڈ ہوتی ہے اور ہمارے پاس سوئسائڈ کر کے لائی جاتی ہے. آئی ایم ورکنگ آن سرخ کفن دیز ڈیز. سیلف ہارم پہ میں کام کر رہی ہوں, لائک آئی سیڈ. سوئسائڈل ڈیتھس پہ میں کام کر رہی ہوں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ. پروفیسر نازش عمران, شی از مائی بیچ میٹ, ہم بہت اچھے فرینڈز ہیں. وی آر ورکنگ آن دیم. ہم ڈیٹا ساتھ میں لا رہے ہیں, ہم گیپس کو اینالائز کر رہے ہیں. پلس میں یہ اینالائز کر رہی ہوں کہ سلمان اکرم راجا کے کیس کے بعد, کیس لا کے بعد جو کہا گیا کہ ڈی این اے از ویری امپورٹنٹ, تو ڈی این اے کی وجہ سے بہت ساری میری جو کورابوریٹو ایویڈنسز ہوتی ہیں وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر چھوڑ دیتا ہے. وائی, وہ گیپ کیوں آ رہا ہے, وہ گیپ کیوں آ رہا ہے, اس پہ مجھے اب اسٹڈی کرنی ہے. مجھے وہاں ایک گیپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اور میں ریکمینڈ کروں گی جوڈیشری کو, فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کو, سندھ جوڈیشل اکیڈمی کو, سپریم کورٹ کو, کہ یہ والا جو ہے کہ ڈی این اے شوڈ بی دی سول corroborative evidence. No, what about other corroborative evidences as well? میرا یہ گیپ انالیسس اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے. میں نے اپنی فرسٹ سائیکولوجیکل اٹاپسی اس وقت کی تھی جب مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ سائیکولوجیکل اٹاپسی کیا ہوتی ہے, 2013 میں. ٹو ڈیٹ میں 37 سائیکولوجیکل اٹاپسیز کر چکی ہوں. ان کا ڈیٹا میں کمپائل کر چکی ہوں. میرے سے غلطی کیا ہوئی کہ آئی ڈڈ ناٹ گیٹ دی IRB دین. IRB بیچ میں بھی لینے کا نہیں سوچا کبھی, کیونکہ میرا مائنڈ یہ نہیں تھا کہ میں پبلش کروں گی. بٹ آئی فیل کہ جب میں 37 سائیکولوجیکل اٹاپسیز کر چکی ہوں اور خود کی ہے میں نے, تو میں پبلش کیوں نہ کروں. یہ پبلش ہونا ہے. یہ میرا آئی ایم ٹاکنگ ٹو اگین پروفیسر مراد موسیٰ صاحب, who has been so kind, and میڈم نرگس اسد, who have been so kind کہ وہ مجھے ہر طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں, because I am talking about change in the system. So I may be ruffling feathers, but I am still continuing to do what I'm doing. اچھا, اب کیا ہوتا ہے پبلکلی ہمارے بارے میں کیا کہا جاتا ہے, MLO کروا لیا, MLO کروا لیا. یار MLO is not MLO. MLO is میڈیکو لیگل آفیسر. MLO کروا لیا کا مطلب ہوتا ہے MLC بنوا لیا, میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ بنوا لیا. میرے بارے میں کہا کیا جاتا ہے, پوسٹ مارٹم تو جمع دار کرتے ہیں,
यकीन कीजिए मेरे पास जो MLOs इस वक्त ट्रेन हो रहे हैं, मेरे जिना के जो मेरे MLOs हैं, they are now conducting postmortems themselves. We have trained mortuary assistants on the lines of assistants, the medical examiner assistants in America. We have trained them. पूरा 1 साल का मैंने मॉड्यूल डेवलप किया है. पूरा मॉड्यूल डेवलप करने के बाद उनको ट्रेन किया है. तो ये वाला जो माइंडसेट है ना, जमादार करते हैं, ये चेंज करना पड़ेगा. MLO का कोई मसला नहीं है, पैसे निकालो, ये हमारे बारे में कहा जाता है. आई एम सॉरी, आई एम एम्बैरेस्ड टू से दिस. MLO फॉर सेल बना दिया गया है. कीमत लगाओ, केस बनवाओ. नाक की हड्डी तोड़नी है 25,000 में हो जाएगी, उंगली की हड्डी तोड़नी है 20,000 में हो जाएगी. इस वक्त मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 95% of my MLOs are not taking bribes. गारंटी जैसे मैं अपनी गारंटी दे रही हूँ, वैसे गारंटी दे रही हूँ. ब्लंडर कर सकते हैं, यस. मिस्टेक कर सकते हैं, यस. फिर लोअर स्टाफ का क्या हो जाता है? थर्ड कॉपी देने के जी 500 रुपए. बाय लॉ वी आर ऑब्लाइज्ड टू गिव थर्ड कॉपी ऑफ द मेडिको लीगल सर्टिफिकेट टू द इंजर्ड. हमें हर सूरत विक्टिम को देनी है. वो देने के हमने तो 3-3 कॉपियां बनवाई हुई हैं, मगर क्या होता है कि वो देने का जो लोअर स्टाफ होता है वो 500 ले लेता है. अभी मेरे एक मॉर्चरी असिस्टेंट ने ये किया. वो मॉर्चरी असिस्टेंट नहीं था, एक्चुअली पियोन था, जिसने शजा के जी हड्डी टूटी भी दिखा देंगे. MLO ने मुझे रिपोर्ट किया, मैंने कुछ नहीं किया. जीरो टॉलरेंस रखी है टुवर्ड्स फैब्रिकेशन, जीरो टॉलरेंस रखी है टुवर्ड्स करप्शन. उसको इमीडिएटली रिलीव किया जाओ. दिस इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट आई वुड वांट टू सी इन ऑल ऑफ अस. हम रोक नहीं सकते, करप्शन पूरी तरह नहीं रुक सकती, मगर पर्सन टू पर्सन या इंप्रूवमेंट आ सकती है सिस्टम में. जो कुछ भी इतनी सारी बातें की, मेरे ख्याल में मैंने 17 मिनट ज्यादा ले लिए हैं. आई प्रॉमिस्ड 40 मिनट्स, मगर मैंने 17 मिनट्स ज्यादा ले लिए हैं. एंड डॉक्टर कुंडी जो है, शी हैज नॉट सेड एनीथिंग. तो मैंने जो रास्ता चुना था, 2 रास्ते निकल रहे थे. एक वो जो रेगुलर डॉक्टर्स लेते हैं, गायनी कर लेती, पीड्स कर लेती, रेडियोलॉजी कर लेती, ऑन्कोलॉजिस्ट बन जाती, न्यूरोसर्जन बन जाती. मैंने वो रास्ता नहीं लिया. मैंने वो लिया जिस पे बहुत कम लोग चलते हैं. मैं ब्लेस्ड रही कि मैंने जिनके बहुत सारे लोगों का नाम लिया है अपनी आज की टॉक में. मैं ब्लेस्ड रही कि मुझे उन जैसे लोग मिले, और मैं ब्लेस्ड रही कि मुझे बहुत सारे करप्ट लोग भी मिले रास्ते में, अभी भी मिल रहे हैं, जिनसे मैंने बहुत सीखा है. और शायद वो करप्ट लोग हैं जो मुझे यहाँ रहने पे मजबूर कर रहे हैं. मैंने शुरू में क्वेश्चन किया था ना कि आखिर मैं रुकती क्यों हूँ यहाँ पर. रुकती इसलिए हूँ बिकॉज मुझे एंड थैंक यू मैडम, थैंक यू आजाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज फॉर अलाउइंग मी टू से all that I have said today. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Sumaya Sayyed. It was a lovely, lovely talk. और हम हैं क्योंकि बेसिक मेडिकल साइंसेज में जाना मेरे ख्याल में वैसे भी जहाद है, और स्पेशली फिर जूरिस की तरफ जाना, फोरेंसिक मेडिसिन की तरफ जाना. मेरी बेटी ने भी हाउस जॉब किया, मैं उसको बड़ा इनकरेज कर रही हूँ कि बेटा आप जूरिस में जाओ, देयर इज अ लॉट ऑफ डेफिशिएंसी ओवर देयर. और हम PMA के फोरम से ये जरूर बात उठाएंगे कि जूरिस वालों को और फोरेंसिक मेडिसिन वालों की पे में एनहांसमेंट होनी चाहिए. एंड स्पेशली जो आपके मेडिकल लीगल ऑफिसर्स हैं, पुलिस सर्जन्स हैं, दे आर एक्चुअली वर्किंग डे एंड नाइट लाइक इट इज 24/7. ये तो नहीं होगा ना कि कोई कत्ल संडे को नहीं होगा या फ्राइडे को नहीं होगा, जुम्मे की नमाज हो रही है. तो ऐसे लोगों को ज्यादा पे करना चाहिए और इस डिपार्टमेंट को हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए. पिछली दफा भी डॉक्टर कैसर ने आपसे कहा था हमें रिटन फॉर्मेट में प्लीज आप भेज दीजिए. यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, आप प्लीज उसमें भेज दीजिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमने PMC के साथ टेक करने हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जो हमने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के साथ टेक करने हैं. और पूरी PMA आपके पीछे खड़ी है. मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. मुलाजिम साहब का वो आज नहीं आ सके, मैंने बताया था उनकी सास की आज कुल है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे. तो आई एम टेकिंग ओवर एज अ मॉडरेटर. आई एम बाय द वे द प्रेसिडेंट PMA. और ये हमारा सिलसिला वेबिनार्स का जो चल रहा है, आज हमारा 43rd वेबिनार है. वी होल्ड इट एवरी संडे and I invite you all to attend this webinar. I'll send you the links every Friday or Saturday, inshallah.
मैडम 2 मिनट देंगी? मैडम रशीद प्रोफेसर साहब मियां को- रशीद बोल रहा हूँ, कैन यू गिव मी? अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू आपकी जी। तरफ मैं आ रही हूँ, आपकी तरफ मैं आ रही हूँ। सबसे पहले मैं पैनलिस्ट प्रोफेसर जाहिद बशीर, प्रिंसिपल शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, प्रोफेसर नियाज बलोच who is the head of department of forensic medicine, मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और हमारे बहुत अच्छे भाई मियां रशीद साहब यहाँ मौजूद हैं, ये भी उनका डिपार्टमेंट है। तो इन तीनों को मैं इनवाइट करती हूँ, अगर वो कुछ कहना चाहें। फिर हमारे कॉलेज की डॉक्टर महविश यहाँ हैं जो HOD है विमेन मेडिकल कॉलेज की। Any other person who is from forensic medicine, please, the floor is open. If you have any queries, any question or any point of discussion, go ahead. Should I Yes, start? आप शुरू कर दें। Yes, please. हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस सब्जेक्ट की तरफ तवज्जो दी। और ये सेकंड सेशन है मेडिकल लीगल पे और फोरेंसिक मेडिसिन पे। और सुमैया बेटी का बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम 22 पार्टिसिपेंट जो इस वक्त मौजूद हैं इसमें, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि संडे वाले दिन उन्होंने टाइम निकाला। और मैं समिया के लिए ये कहूंगा, पहले कमेंट्स और फिर 2-3 सजेशन, कि एक्सीलेंट जॉब शी हैज डन, और शी इज वेरी मोटिवेटेड, और अल्लाह करे वो मोटिवेटेड रहें और इससे बैकआउट ना करें। और शी इज एक्सीलेंट वर्कर, और मुझे पता है कि वो सिंगल हैंडेडली काम कर रही हैं, और ये भी पता है कि कितनी इनको अपोजिशन है विद इन द स्पेशलिटी एंड आउटसाइड द स्पेशलिटी एंड इन गवर्नमेंट एंड इन एस्टेब्लिश। इसके बावजूद एक खातून का यहाँ तक पहुंचना और इतना इन बातों पे स्टैंड लेना, इट इज हाईली अप्रिशिएट। हैविंग सेड दैट, 1-2 बातें सिर्फ करूंगा। एक तो समैया बीबी से हमारी बड़ी मुलाकातें हुई, लेकिन कभी इन बातों पे डिस्कशन नहीं हुई। अगर एक सिटिंग हमारी बड़ी विद इन स्पेशलिटी हो जाती तो वी वुड हैव रिफाइंड द थिंग्स। दूसरा पॉइंट ये है, कुछ बातों में वो कंफ्यूज हो गई कंसेंट और एथिक्स में, बहरहाल ये एक टेक्निकल पॉइंट है। तीसरी बात ये है कि जो इन्होंने FCPS का कहा है, किसी 1-2 इंडिविजुअल केसेस में ये बात सही हो सकती है, लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि इस वक्त FCPS फोरेंसिक मेडिसिन के स्टैंडर्ड हाईएस्ट हैं जिनको हम अचीव कर रहे हैं और करा रहे हैं। तो इसमें कुछ इनकी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ इश्यूज एस्टेब्लिशमेंट के हैं। जितना एस्टेब्लिशमेंट ने कावर्ड किया है मेडिकल लीगल ऑफिसर्स को, उतना किसी ने नहीं किया। और एक जरूरी बात मैं करके, चूंकि टाइम थोड़ा है, करूंगा कि पंजाब में बहुत सी जगहों पे होम डिपार्टमेंट के अंडर हैं चीजें सारी, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर होनी चाहिए, और बहुत सारी चीजें हैं। और थोड़ा सा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि हम सब लोग ये काम करते रहे हैं, और जितना ये कर रही हैं इनसे 200 टाइम्स ज्यादा भी लोगों ने काम किया है। लास्ट कॉन्फ्रेंस सिंध में हुई थी, गुलाम अली साहब ने कराई थी, जिसमें मैं DMJ का सुपरवाइजर था, तो 20 के 20 स्टूडेंट हमारे उसमें आए थे। तो ये भी हमने कई दफा सजेस्ट किया है सिंध के साथियों को कि एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कराएं जिसमें सब आए और गवर्नमेंट पे उसका इम्पैक्ट बने। और मैं यही कहूंगा समैया से कि इसको कंटिन्यू करें, कीप इट अप, माशाल्लाह, एक्सीलेंट जॉब डन। Thank you so much, Mia Rashid Saab. Anybody else who wants to say something? I want to say something. जी, फरमाएं। कैसे बोलूं? बोल लूं? जी बोल रहे हाँ, हैं। बिल्कुल आप बोल साहब। नियाज बलोच साहब बोल आवाज रही आ रही हैं। है मेरी? आवाज आ आ रही रही है, है मेरी? बहुत अच्छी आ रही है। जी जी, Loud and clear. My name is Dr. Niaz Baloch. I'm a professor of forensic medicine, you know. I was really impressed by the talk of Dr. Sumaya Sayyid. मैं तो उनका एक माने में मुरीद बन गया। उन्होंने इतनी अच्छी बातें की हैं, I liked those. लेकिन एक बात करना भूल गई कि our system, medical legal system in Pakistan is a complete failure. Why it is complete failure? हालांकि इतना important system है, search for truth is the essence of forensic medicine. This truth forms an essential link between the enforcement of the law and the protection of the public and the administration of justice. आपने पब्लिक को जस्टिस दिलवानी है इस सिस्टम के थ्रू। इस सिस्टम में एक ऑफेंडर होता है, एक विक्टिम होता है, एक MO होता है, एक वकील होता है, एक पुलिस वाला होता है, एक जज होता है।
ये इस सिस्टम के किरदार है। इस सिस्टम में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी आती है। आप देखें हमारे मुल्क में कुछ अच्छे systems हैं, like highway traffic police and the motorway. They are doing their work in excellent manner. Forensic science laboratory doing their work in excellent manner. The judges, they are doing their work in excellent manner because their salaries are maximum. एक पुलिस वाला और एक मेडिकल ऑफिसर, their salaries are so little जो उनको मजबूर कर देती है करप्शन पे। अगर हमारे मुल्क में इस चीज को देखा जाए कि our doctors, our prosecutors, our morticians, our dispensers and the police of our country have got a maximum salary, this system will be the most important system and successful system in Pakistan. मेरी नजरों में ये system तब कामयाब हो सकता है when we involve our women medical officer and medical legal work. They can tolerate the pressure of the political peoples. They never go under threat. They are dignified. They are efficient. They are courageous. And the lady doctors like Sumaya Sayyed, they are honest, you know. I salute her. और मेरी ये सजेशन ले ले कि इस मुल्क में मेडिको लीगल सिस्टम तब कामयाब होगा जब डॉक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं मेडिको लीगल प्रैक्टिस में उनकी सैलरीज फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के डॉक्टर्स के बराबर होगी। दिस इज माय हम्बल सजेशन, प्लीज नोट इट डाउन। हमारा ये सिस्टम तब कामयाब होगा। और मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूँ डॉक्टर सुमैया को कि हम जो प्रोफेसर फोरेंसिक मेडिसिन एकेडमिक पढ़ाते हैं who have all passed through those practical work, starting from when we were demonstrators working in a medical legal section, working in autopsy section, working in exhumation sections. We have performed so many medical legal work कि आप सोच भी नहीं सकती। और मैं invite करूंगा मैडम सुमैया को, she should go to Punjab, she should go to KPK बलोचिस्तान और वहां पर हमारे डॉक्टर्स को अच्छे अच्छे मशवरे दे, लेक्चर्स दे। उनकी अंग्रेजी से भी मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। I salute her once again. Thank you very much. Thank you, Dr. Professor Salma, Niaz can Baloch I say sahab, something, jo aapne- Dr. Salma? Sure. Very enlightening talk by Dr. Sumaya. As the president of the Society of Forensic Medicine, I'd like to highlight a few things. The first thing is that this specialty has been under the pressure or under the fear of the Pakistan Medical Council or the Pakistan Medical Dental Council ever since it has begun. So 1979 when this specialty started, and every few years we hear that is subject ko khatam kar dein. So that's one reason why people are afraid of coming into this specialty, because they're not sure whether this specialty will stand or be there in a couple of years from the road. So I would request the PMA to support us in this. And I think there is a misconception. What is quoted mostly is the Western undergraduate education. So that's a different legal system. So we have to understand that our legal system or our medical graduates have to serve the legal system in this country. और इस country में legal system में ये है कि एक medical officer has to do this medical legal work. So he should be trained at the undergraduate level. Having said that, the society is also of the view that this is a technical specialty, and somebody who does not have a postgraduate qualification ultimately should not be doing medical legal work. So the way we are working is that we produce enough people ताकि जहाँ पे medical legal work हो रहा है वो एक qualified medical man, qualified in forensic medicine. And the other thing is, Dr. Sumaya ने कहा कि जी there is a disconnect between the practical work and the academic work. I think this is more so in Sindh. If you look at
centers that have taken over the medical legal work. Centers where the quality of work has improved and the impression of the general public, the lay public on the quality of work has improved, and the satisfaction is much